A very pleasant morning to all the dear students of class 9. Uh, Today we are going to discuss our chapter, new geometry chapter, that is your lines and angles. So lines and angles, the importance of lines and angles is basically mostly found in the architectural things. Okay, it means in the construction or in the whenever you have to make a model or in a multi-story building construction, there the architectures use the concept of lines and angles. Means they put the material, they put the things in some of the angles, they put the to make a roof, they put the four parallel pillars to each other. So that is means in the basic geometrical constructions the lines and angles matters. And lines and angles, in fact, the other terms, the other concepts arising from this, like in the previous chapter you have seen that there were axioms, there were postulates, and means we use some of the previously proved things to prove new things. ओके, टू प्रूव न्यू रिजल्ट्स. तो वैसे ही हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अपने क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे. एंड वी विल सी दैट like in the CCT practice items also you have seen that there was a question of finding the distance of the ship from the tower. Okay, so that in that you have used the concept of lines and angles. It means the concept of lines and angles is in our daily life. It is a geometrical concept and it is seen everywhere. So starting with the chapter, I have written some of the definitions. Actually these are very common definitions that you all are aware of. Okay, you all are aware of. These are very simple and common definitions. Means you are uh, doing them, you are understanding them from fifth standard, from sixth standard. Okay, when you have the introduction of the idea of geometrical concept and lines, तो वहाँ से आप ये अर्लियर क्लासेस की छोटी क्लासेस की डेफिनेशंस हैं, बट मैंने ये लिखी है बिकॉज पर्सनली आई डू फील दैट इफ़ यू टेक द चैप्टर इन अ वे फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट, बेशक वो आपको पहले भी आता हो, यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर कि आप करने क्या चाह रहे हैं, और आपकी प्रीवियस मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं. तो फॉर दैट पर्पस आई हैव रिटन दीज. सो आई एडवाइज यू टू write the definitions. I will provide the note in the Google Classroom also, the PDF of these. So some definitions. The first one is your line segment. So a line with two endpoints is line segment. Of course, you know, ray, a part of a line with one endpoint means line segment आपका कैसा appear होगा? You know it. You are a student of 9th standard, so it is a line segment means A B, है ना. रे कैसी होगी? इस टाइप से रे. ओके, इसका एक एंड पॉइंट होता है. कोलिनियर पॉइंट्स व्हेन थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट. कोलिनियर इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म. बच्चे बहुत बार इसको नहीं रिमाइंड रख पाते और कंफ्यूज भी होते हैं. तो कोलिनियर मीन्स व्हेन थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स व्हेन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट. ये भी स्मॉलर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है. यू नो कि अगर इस पॉइंट से टू रेज ऐसे ओरिजिनेट हो जाएं तो एक एंगल फॉर्म होगा. आर्म्स, द रेज मेकिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स. ये रे है जो, इनको आर्म्स बोलते हैं. वर्टेक्स, द एंड पॉइंट ऑफ रेज मेकिंग एंगल, ये पॉइंट इसको वर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है. एक्यूट एंगल, यू नो that angle measuring between 0 to 90 degree, it appears like this. Right angle exactly equal to 90 degree. Obtuse angle, an angle greater than 90 degree and less than 180 degree. And straight angle, angle equals to 180 degree, is called as straight angle. Straight angle is an important term. It is used in the geometry everywhere. Okay, so most frequently used term. So these are the notes of these definition. Some more definitions are there. Reflex angle, the angle greater than 180 degree and less than 360 degree, it is this is the reflex angle, this. Okay, this is the reflex angle. Complementary angles, छोटी classes में पढ़ा है आपने in the 8th 7th standard also. The angles whose sum is 90 degree. Complementary and supplementary में बहुत सारे बच्चे बहुत बार confused रहते हैं. That's why I have written the definition for thinking about all the students. So इसलिए ये आपको शायद helpful हो. Supplementary angles whose sum is 180 degree. It
It means 120 plus 60 degree is 180 degree. These are supplementary angle. Now another term, that adjacent angles. You are also familiar with this, but understand this. This is important. Two angles are adjacent if they have a common vertex, a common arm, and their known common arms are on different sides of common arm. ठीक है, डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मीनिंगफुल भी है. उन्होंने कहा एडजेसेंट एंगल्स तभी होंगे जब उनके एक कॉमन वर्टेक्स होगा. ठीक है, यहाँ पर एक वर्टेक्स दिखाई दे रहा है मुझे, एक कॉमन आर्म होगी. ठीक है, बी डी आर्म, मुझे जो ये बी डी रे है, दिस इज कॉमन टू बोथ दीज एंगल ए बी डी एंड डी बी सी. दिस इज कॉमन, तो ये कॉमन आर्म हो गई. एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स, और जो दोनों एंगल्स की, अगर एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कौन सी हैं? ए बी है, और इसमें नॉन कॉमन क्या है? बी सी. दोनों एंगल्स में नॉन कॉमन आर्म्स ए बी एंड बी सी आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म. ये इंपॉर्टेंट है, वो डिफरेंट साइड्स पर होनी चाहिए कॉमन आर्म की, तो वो भी है. जब ऐसी कंडीशन होती है, देन ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स, तब वो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं. इट मीन्स, मैं आपको रफली थोड़ा सा लिख रही हूँ इधर, इसको मत नोट डाउन करना एक्सप्लेन करने के लिए. अगर आपके पास, इट मीन्स दैट अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए कि ये आपका एक एंगल है, ये है, ठीक है, ऐसी कंडीशन है आपके पास, और ये आपका ए ओ बी सी ऐसे ले लीजिए. सो आप ऐसा नहीं कह सकते दैट ए ओ सी, मतलब अगर कोई स्टूडेंट कहे कि ए ओ सी इट मीन्स दिस एंगल, एंड बी ओ सी इट मीन्स दिस एंगल, दीज आर एडजेसेंट एंगल. नो, क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स तो आपका ओ कॉमन है, लेकिन कॉमन आर्म आपने ओ बी भी मान ली. लेकिन जो आप ये वाला एंगल देख रहे हैं, इसकी नॉन कॉमन आर्म, सॉरी, कॉमन आर्म आपने ओ सी मान ली. ओ सी यहाँ पे कॉमन आर्म हो गई ना दोनों में. लेकिन कॉमन आर्म अगर ओ सी हो गई दोनों एंगल्स में, बट द नॉन कॉमन आर्म ओ बी, सॉरी ओ ए एंड ओ बी, बोथ आर लाइंग ऑन द सेम साइड. सेम साइड, इसी साइड है दोनों कॉमन आर्म के. ठीक है, डिफरेंट साइड नहीं है. तो इसलिए यहाँ पर कॉमन आर्म ये है बी डी, क्योंकि आप देख सकते हैं बी डी इसमें भी है, बी डी इसमें भी है, दोनों एंगल में बी डी है, क्योंकि वो कॉमन आर्म है. दैट यू हैव डन इन द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल. आपने ये सीखा होगा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स में, writing the angles. So this is your common arm. The non-common arm are on the different side of the common arm. So therefore ABD is adjacent angle to DBC. Important definition and important concept to be remember of. Now they are saying if BA and BC form a line, अगर ऐसा हो कि ये जो मेरा एंगल फॉर्म हो रहा है, मैं इस ए बी को शिफ्ट करके यहाँ पर इसके स्ट्रेट ले आऊँ, मीन्स ऐसे बन जाए फिगर. ठीक है, ए बी ऐसे हो जाए इस सेम फिगर का, तो बी ए एंड बी सी ने एक स्ट्रेट लाइन अगर फॉर्म कर ली, देन द एंगल ए बी डी एंड डी बी सी आर कॉल्ड लीनियर पेयर. ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये भी प्रीवियसली नॉन टर्म है आपके लिए. एंड लीनियर पेयर मीन्स द सम ऑफ दीज टू एंगल इज 180 डिग्री. ओके, बिकॉज दिस इज a straight angle, this is depicting a straight angle, and this is called as a linear pair of angle. And because the common arm BD is a ray on the line ABC, समझ रहे हैं, जब आप ABC या ABBC एक सिंगल लाइन में है, तो BD उसके ऊपर जो रे है, the BD is the ray on this line, makes the two angles as ABD and the another angle as CBD, and these two angles are called as linear pair of angles, and their sum is 180 degree, as it is showing you the straight angle. Okay, now vertically opposite angles, when two lines intersects, जब दो लाइन intersect कर रही हैं, दो straight line intersects, then at the point of intersection we get two pair of vertically opposite angles. Okay, at the point of intersection we are getting two pair of vertically opposite angles. It means when the line AB and CD intersect, okay, so they are intersecting at a point O, so therefore we get two pair of vertically opposite angles. Which are the pair? Vertically opposite. अपोजिट का मतलब ये है कि वो आपस में आमने सामने हैं. ठीक है, अपोजिट हैं एक दूसरे के. सो ए ओ डी इज वर्टिकली अपोजिट टू बी ओ सी या सी ओ बी, एंड ए ओ सी इज वर्टिकली अपोजिट टू डी ओ बी. ओके, सो दीज आर टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स.
these are the all definitions. So class 9, these are all your definitions, the 16 definitions that I have written, and the last two I explained you are important. So you should write them all. And after that uh, knowing about this definition, we come to the conclusion of two axioms. Okay, we have concluded the two axioms. The two axioms are axiom 6.1, which is given in your book also. Okay, and axiom 6.2. Axiom 6.1, 6.2 is called because it is chapter 6 and it is the first axiom of chapter 6. So therefore it is termed as axiom 6.1. What is axiom? You know very well. So they are saying that if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. Okay, वो आपको मैंने अभी explain कर दिया है linear pair of angle में. वो कैसे हो रहा है वो भी आप वहाँ से समझ गए हैं, बट इट हैज़ जस्ट मेड इट एन एक्सियम बिकॉज इस एक्सियम का यूज़ हम क्वेश्चंस को प्रूव करने में, एंगल फाइंड करने में यूज़ करेंगे. तो देयरफॉर वी हैव मेड इट एन एक्सियम. सो इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक लाइन पर कोई रे है जैसे पिछले अभी आपने देखी थी, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree and it is formed a linear pair. And axiom 6.2 is if the sum of the two adjacent angles is 180 degree, अगर ऐसा हो जाए कि दो adjacent angles का sum 180 degree है, then the non common arm of the angles form a line. जो non common arm है, जैसे कि आपने देखा था लास्ट में AB and BC जो non common arm थी वो दोनों line बना रहे थे. ठीक है, so these are the two axiom. Now coming to the theorem 6.1, which is important, sometimes it is asked in the exam, and it says that if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. ठीक है, तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कैसे करती हैं वो आपने देखा. एट जिस पॉइंट पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पर आपको टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मिलेंगे. वो कैसे होंगे वो भी आपने देखा इन द डेफिनेशन. सो दे आर सेइंग दैट two vertically opposite angles are formed, they are equal. So this is an important result basically you can say, and it will be used all over the geometry. मतलब जब भी आपको ये दिमाग में आएगा, जब भी आपके पास ये गिवन होगा कि टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एकदम आपके माइंड में आना चाहिए, एकदम टिप्स पे आना चाहिए कि दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इट मीन्स दे विल फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल. और उसके बाद एकदम आपके रिजल्ट ये स्ट्राइक करना चाहिए दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विल बी equal. Okay, so therefore you are proving this here. Now we will see the proof. So here you are given the two lines intersect each other. Okay, so we will take two lines, उन्होंने specify नहीं किया, but we will take the two lines. Okay, so we will take the two lines AB and CD and make them intersect at point O. So whenever we have a theorem to prove, okay, so the best way and the correct way to write the proof of theorem is first you should write the theorem. Okay, in the exam also while solving the theorem you should write the theorem and then write the basic introduction या basic part जिससे आप start करने वाले हैं. Like here we will consider the two lines AB and CD intersect each other at O, so we get vertically opposite angles as, तो इससे हमें vertically opposite angles मिलेंगे जो कि हमारे क्या होंगे, AOC is vertically opposite to BOD and the angle AOD is vertically opposite to BOC. Okay, so two pair of vertically opposite angles हमें मिल गए. They are saying that vertically opposite angles जो हैं वो एक दूसरे के equal होंगे. So to prove given हमारा introduction हमने लिख लिया. ठीक है, ये उसके बाद आपने लिखा to prove हमें क्या है कि एंगल AOC को इक्वल दिखाना है एंगल BOD के, और एंगल AOD को इधर AOD को इक्वल दिखाना है BOC के. Okay, so how we will start the proof of this. Let me explain you the simple सा concept जो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ. हम एक एंगल को कॉमन लेंगे.
ठीक है। हम इसको प्रूव करेंगे लीनियर पेयर से। मतलब थ्योरम को आपको ध्यान रखने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने क्या वाले हैं। तो हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो वी विल हैव दैट वी नो दैट सी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन, सी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ओ ए इस पर रे है। सो वी विल हैव दैट ए ओ सी एंड ए ओ डी विल मेक अ लीनियर पेयर, ओके। सो ए ओ सी और ए ओ डी का सम 180 डिग्री हो जाएगा। लाइकवाइज अब मैं इसको लूँगी, मेरे को ए ओ डी को कॉमन लेना है, ठीक है। ए ओ डी को कॉमन लेना है तो मैं इस वाली स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करूँगी। ए ओ बी को, ए ओ बी इज अगेन a straight line and OD is the ray on it, therefore it will form a linear pair and angle AOD plus angle BOD will be 180 degree. So the two linear pair angles will let me to get the proof. So you can see here, मैंने आपको explain कर दिया, अब आप proof देख करके आपको समझ में आ जाएगा. So now you can see the proof here. While you will you had made the figure in your copy, you will able to understand. Okay, here it says as ray OA stands on CD, ठीक है. So we will get AOC plus AOD is equals to 180 degree linear pair. Okay, आप फिगर को अपने आप रेफर करेंगे जब मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँगी, ठीक है. This is your AOC plus AOD is equals to 180 degree linear pair. I marked it as equation 1. Also ray OD stands on the straight line AB. So therefore I get angle AOD प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. मतलब मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट था कि मुझे एक एंगल को यहाँ पर कॉमन लेना है, एक एंगल मेरा कॉमन लेकर के चलूँगी मैं, तब ये क्वेश्चन, तब ये प्रूफ सॉल्व होगा, ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों टर्म्स जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी. हेयर इफ दिस कम्स टू योर माइंड, इफ इट struck to your mind that here you use the Euclid's axiom कि दोनों चीज़ एक चीज़ के इक्वल हैं तो वो आपस में इक्वल हो गई, ठीक है. इसलिए हम यूक्लिड्स के एग्जाम्स पढ़ रहे थे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई गेट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ठीक है. सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट आई हैव रिटन इज इट इम्प्लाइज एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ डी. ये कैसे हुआ? अब ये ऐसे हुआ कि आपका इधर भी एंगल ए ओ डी था, इधर भी एंगल ए ओ डी था. तो बेसिकली मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग एंगल ए ओ डी फ्रॉम बोथ द साइड्स, एल एच एस और आर एच एस दोनों जगह से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एंगल ए ओ डी से एंगल ए ओ डी कैंसिल हो गया. या आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों साइड इक्वल प्रेजेंट थी चीज़, तो दोनों साइड से इक्वल सब्ट्रैक्ट हुआ. अगेन द यूज़ ऑफ यूक्लिड एक्सियम, दोनों साइड से इक्वली सब्ट्रैक्ट हुआ तो वो दोनों आपस में इक्वल हो गए, एंगल ए ओ सी बी ओ डी. या आप ये भी कह सकते हैं इजी वे में, मतलब फास्ट के लिए, कि एंगल ए ओ डी दोनों साइड थे तो दोनों कैंसिल हो गए. लेकिन कभी भी एग्जाम में इनको ऐसे कैंसिल मत करना पेन से, ठीक है. इट इज़ नॉट करेक्ट. एंगल को कभी भी ऐसे कट नहीं किया जाता. तो एंगल ए ओ डी यहाँ पर सेम है. या तो आप सब्ट्रैक्ट करके दिखाइए कि सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स, या आप डायरेक्ट भी इस तरीके से लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी. तो आपने इस तरीके से जो आपका एंगल ए ओ सी था वो बी ओ डी के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है. लाइकवाइज यू कैन प्रूव दैट एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी. मतलब कि आप देखिए, अब आप एंगल ए ओ डी, ये वाले एंगल को मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है बी ओ सी के, तो मैं इस वाले कॉमन एंगल का यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है. आई हैव रिटन सिमिलरली, the last line I have written, similarly taking the straight line AB and CD straight line लेने से क्या हुआ, we get angle AOD plus angle BOD is equals to 180 degree, angle BOD plus angle BOC is equals to 180 degree linear pair. It implies फिर वही सेम आपस में ये इक्वल हो गए, दोनों साइड BOD था, तो we get angle AOD is equals to angle BOC, hence proved. So the two vertically opposite angles are equal is proved in this way. So much simpler and easy theorem, and important one also. Now moving toward the exercise 6.1, I'm taking, there are all I think 6 questions. I'm taking 3 for today. The other 3 I will discuss in the another video. In the next class video I will discuss the other 3. So today, now moving toward exercise 6.1. So the exercise 6.1, question number 1. You can write the questions. Okay, I recommend you to write the questions in your notebook. It makes
easier, the solution easier and helps to understand you also. And figure draw करनी है और स्केल से properly figure draw करेंगे अच्छे से, because figure in the geometric chapters the figure is much more important and are used to solve the question. और एग्जाम में भी आप फिगर ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं कि पेपर में फिगर दी हुई है तो हमने अपनी आंसर शीट में ड्रॉ ही नहीं की, ऐसा नहीं करना है. Exercise 6.1, they are saying in the figure 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. तो लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मैं इसका भी आपको बता दूं क्लास. समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आपको जब भी दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है, और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि क्वेश्चन में गिवन ही होता है. 98% ऐसा होता है कि क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. इट मीन्स कि ए बी और सी डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म करेंगे, ठीक है. जैसे ही हमें ये पता चला कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड हो, इट मीन्स ए बी एंड सी डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म करने वाली हैं. इन दैट समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट मेक एन अजम्पशन बाय देमसेल्व्स. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अजम्पशन अपने आप से कर लेते हैं कि लाइंस नहीं दी हुई होती स्ट्रेट और वो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी फॉर्म नहीं कर रही होती, लेकिन उनको फिगर को देखकर लगता है कि ये लाइंस स्ट्रेट हैं और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रही हैं, एंड दे इंटरप्रेट द क्वेश्चन रॉन्गली. सो वैसा नहीं करना है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच यू विल गेट एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है सब्जेक्ट के अंदर. तो here it is given AB and CD are straight lines, okay, intersect at O, and AOC, this angle AOC plus angle BOE, these two angles का एडिशन आपको 70 डिग्री गिवन है, ठीक है, इसका और इसका. ओके, एंड एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ये वाला गिवन है आपको कि ये 40 डिग्री है, ठीक है. नाउ दे हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द एंगल COE पूछा है और एंगल BOE, ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है. तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? अगेन फिगर देखिए इस तरीके से, दिस इज कंसिडर्ड एज अ गुड वे टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो आपको ये सीखना चाहिए, ठीक है, इफ एनी स्टूडेंट डज नॉट डू दिस. So given is AB and CD intersect at O and AOC plus BOE is equals to 70 degree, angle BOD is equals to 40 degree. To find angle BOE and angle COE, now solution, what you will do? So आपको find क्या करना है? आपको figure से बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा that AB is a straight line. Okay, OC and OE इस पर दो rays हैं and straight line पर straight angle form होगा. So from the question I will write that from the figure we get angle AOC plus angle COE plus angle BOE is equals to 180 degree. Angles on straight line. Okay, so AOC plus BOE is equals to 70 degree. So therefore COE plus 70 degree is equals to 180 degree. Angle COE is equals to 180 degree minus 70 degree. You will get 110 degree solved. ठीक है, एंगल COE आपको मिल गया है यहाँ से 110 degree. Now you have to find angle BOE. So you can see that again BOE को फाइंड करने के लिए CD स्ट्रेट लाइन को देखिए आप. एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न यही आएगा आपका, ठीक है. इसको आप लिख लेंगे, सेम एज अबव लिख रही हूँ मैं. सो COE आपने अभी फाइंड किया 110 डिग्री, BOE आपको फाइंड करना है and it is your 40 degree. So angle BOE is equals to 180 degree minus 150 degree. Angle BOE is equals to 30 degree. So this is your angle BOE. The solution is done. Now moving toward question number 2. Question number 2, I have
I will explain you and I want you to do by yourself. Simple question है. In the figure 6.14, lines x, y and mn intersect at O. So therefore xy line and mn line, these are two straight lines intersect. Lines x, y and mn intersect at O, and if angle POY is equals to 90 degree and A is to B is equals to 2 is to 3, find C. Okay, so this is the figure. ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू विल डू द सॉल्यूशन बाय योरसेल्फ. ठीक है, स्टार्ट ऐसे करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करना बहुत ईजी है. आप देख सकते हैं एंगल POY हम वैसे ही करेंगे, वही चीज़ को कंसिडर करेंगे जो हमें सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा. ओके, सो XOY इज अ स्ट्रेट लाइन and OP is the ray. You will see, you can write it as also that XOY is a straight line, OP is the ray, and therefore angle POY and angle POX are linear pair, and you will get angle POX is equals to 90 degree. ओके, सॉल्व करके आप 90 डिग्री ले लेंगे क्योंकि आपको एंगल POY गिवन है कि 90 डिग्री है. ठीक है, यहाँ से आपको पता है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, लेकिन आप प्रूफ का, लॉजिक का, रीजनिंग का यूज़ करते हुए ही सॉल्यूशन को करेंगे. ठीक है, so you get POX is equals to 90 degree. It means A is to B को आप क्या कंसिडर करेंगे, let A is equals to 2x, B is equals to 3x. Because POX is equals to 90 degree, therefore 2x plus 3x is equals to 90 degree. It means 5x is equals to 90 degree. It means x is equals to 18 degree. ठीक है, 18 5 90, so 18 डिग्री. अब x 18 है तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, 18 2 36, और b आपने जो कंसिडर किया 3x, तो 18 3 54. तो आपको a और b की वैल्यू मिलने के बाद, a और b की वैल्यू मिलने के बाद दे आर सेइंग find C. Now you will see that MON is a straight line. Angle B and angle C form a linear pair. Therefore angle B plus angle C is equals to 180 degree. और आपने angle B 150, sorry angle B आपने 54 डिग्री निकाला है. So 180 minus 54 डिग्री you will get angle C. ठीक है, सॉल्यूशन आप इसका खुद लिखेंगे और अच्छे से सॉल्यूशन लिखना है. मैं इसका चेक करूँगी सबका सॉल्यूशन कि कैसे कैसे लिख कर देते हैं आप. Now question number 3 is also simple. In figure 6.15, angle PQR is equals to angle PRQ. So PQR ये वाला एंगल इक्वल है PRQ के. ठीक है, दोनों एंगल से इक्वल है. दे आर सेइंग दैट ये वाला एंगल जो है PQS प्रूव करो PRT के इक्वल है. ठीक है, आउटसाइड वाले एंगल यूज़ प्रूव करने हैं, तो बहुत ही सिंपल है, लीनियर पेयर का ही यूज़ होगा. गिवन टू प्रूव यू कैन सी एंड प्रूफ सिंस ST इज अ स्ट्रेट लाइन, PQS प्लस PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिखेंगे रीज़न हमेशा लिखेंगे लीनियर पेयर. ओके, यहाँ पर भी आपका लीनियर पेयर आ जाएगा. एंगल PRT प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल्स टू अगेन 180 डिग्री. ओके, तो यहाँ से आपका क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री इक्वल है तो आपकी ये वाली पूरी LHS इक्वल हो जाएगी इसके. बट यू हैव दैट PQR ये वाला एंगल इक्वल है PRQ के. सो देयरफॉर जब ये ही आपस में इक्वल है तो आपको क्या मिलेगा, एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT. Hence proved. It is a simple solution of this. The other 3 questions I will discuss in the next video. You can do try themselves, but I will discuss. And in case of doubt, just ask me on the group. This is all for today's class. Thank you class 9 for watching the videos. Please be regular with your studies and complete your work and regular in your class, in your online classes, and stay happy and stay safe at home.